blue, green, white brown, and brown. So the only difference between the A and B standards is the green wires are swapped with the orange. And it doesn't really matter which standard you use. Both standards do the same thing. But here in the US, most people use the B standard. So whether you choose the A or B wiring standard, if both ends of the cable are wired using the same standard, then this is known as a straight cable, which is also known as a patch cable. A straight cable allows signals to pass through from end to end. This is the most common type of cable that's used in local area networks. A straight cable is used to connect computers to hubs, switches, routers, or modems. Or in other words, it's used to connect dissimilar devices together. So as I said before, this is by far the most common cable that's used on local area networks. So these two straight cables here do the exact same thing. The only difference is that one cable is wired using the A standard and the other one is wired using the B standard. So let's talk about a crossover cable. Now, a crossover cable is also used on local area networks, but it's not as common as a straight cable. A crossover cable is created when both ends of the cable are wired using the two different standards. For example, one end is wired using the A standard, and the other end is wired using the B standard. Crossover cables are used to connect two similar devices together. For example, crossover cables are used to connect two computers directly to each other without using a hub or switch. And they can be also used to connect hubs to hubs or switches to switches. So they are used to connect two of the same devices together. Now, in addition to talking about the different types of twisted pair cables, we also have to talk about the categories of twisted pair cables. And these categories are called Cat 3, Cat 5, Cat 6, and Cat 7. And the difference between these is the maximum speed that they can handle without having any crosstalk or interference. The numbers of these categories represent the tightness of the twists that are applied to the wires. And as you can see on the illustration of the categories and speeds of the different twisted pair cables. So as you can see, the speed ranges from the lowest category, which is Cat 3 at 10 megabits per second, and all the way up to Cat 6A and Cat 7, which has speeds of 10 gigabits per second. Now, most networks today would use at least Cat 5e on their networks, because most networks would be running at least at gigabit speeds. So Cat 3 and Cat 5 are slower than gigabit and are pretty much obsolete today. But of course, if you're running a network that can handle 10 gigabit speeds, you would have to use Cat 6A or Cat 7 on your network. But even if you have an older network that's running slower speeds, you can still use Cat 7 because it is backward compatible. Cat 7 is actually a shielded twisted pair version of Cat 6A. And finally, the latest version is Cat 8. Now, Cat 8 is the ultimate copper cable. It's a shielded twisted pair cable which has a delivery speed of 40 gigabits per second up to a distance of 30 meters, which is 4 times faster than Cat 6A or Cat 7. So with this, you got the idea about uh, what are different type of uh, cables which are twisted inside the when you say one UTP or one STP, and there are different types of connections, straight through and crossover. Now we'll see the video how this actual one any one type, okay, how it is connected through RJ45. Is there any doubt in this particular topic? Like you have understood UTP, STP, different categories, and straight through and crossover cabling. Is it clear? Yes, ma'am. Yeah.
हेलो फ्रेंड्स, माय पीसी सपोर्ट चैनल में आपका वेलकम करता हूं। आज मैं Are you able to watch this video properly? Yes, ma'am. Yeah. आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा कि कैसे नेटवर्क और पैच केबल को क्रिम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये कुछ टूल्स हैं और इन टूल्स को मैं यूज़ करूंगा नेटवर्क और पैच केबल को क्रिम करने में। तो सबसे पहले है मेरे पास ये क्रिम्पिंग टूल, आप ये देख सकते हैं। और ये क्रिम्पिंग टूल आप मार्केट से इजीली परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये एक ब्लेड होता है। तो यहाँ से हम वायर को कट कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर एक सॉकेट होता है, तो यहाँ पर हम वायर्स को क्रिम करते हैं इस तरीके से। और मेरे पास एक ये कटर है, तो इस कटर को मैं यूज़ करता हूँ वायर के इंसुलेटर को कट करने के लिए, आप ये देख सकते हैं। जब हम ये क्रिम्पिंग टूल परचेज करते हैं तो उसके साथ ये आता है। और ये है वायर कटर, और उसके अलावा मेरे पास एक लैन टेस्टर है। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ पैच कोड और नेटवर्क केबल को टेस्ट करने के लिए। और मेरे पास ये एक RJ45 कनेक्टर है, आप ये देख सकते हैं। तो एक्चुअली ये ब्लेड्स होते हैं और वायर्स को हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं और उसके बाद हम इन ब्लेड्स को क्रिम करते हैं। तो क्रिम्प होने से क्या होता है, ये ब्लेड्स कॉपर वायर से टच हो जाते हैं यहाँ पर। और मेरे पास ये एक कैट 6 केबल है, आप ये देख सकते हैं। इसमें एक्चुअली 4 पेयर होते हैं, मीन्स 8 कॉपर वायर्स होती हैं डिफरेंट कलर्स की। तो मेरे पास ये ब्रांडेड केबल है, आप ये देख सकते हैं। तो इसमें ये RJ45 कनेक्टर लगा हुआ है। ये एक्चुअली मशीन से क्रिम्प होता है। तो ये कैट 6 केबल है। सबसे पहले मैं इसका इंसुलेटर कट करूंगा। तो इंसुलेटर कट करने के लिए ये मैं कटर यूज करूंगा। तो इसमें यहाँ पर वायर्स को हम इंसर्ट करते हैं इस तरीके से, और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और इस तरीके से रोटेट करेंगे। तो आप ये देखिए, इसका ये इंसुलेटर कट हो गया है। और इन वायर्स को हम सेपरेट कर लेंगे। इसमें ये देखिए प्लास्टिक होता है, ये वायर को एक्चुअली सेपरेट करने के लिए यूज होता है। तो मैं इसको कटर से कट कर देता हूँ। और एक ये थ्रेड है, तो इसको भी कट कर देते हैं। तो ये वायर्स हैं ट्विस्टेड है, और इन वायर्स को मैं अनट्विस्ट कर देता हूँ। और इन वायर्स को स्ट्रेट कर लेना है इस तरीके से। जिससे क्या होता है, ये वायर्स हैं प्रॉपरली इंसर्ट हो जाती हैं RJ45 कनेक्टर्स में।
तो एक्चुअली इसकी एक स्टैंडर्ड कोडिंग होती है, कोडिंग ए और कोडिंग बी। तो मैं नॉर्मली कोडिंग बी यूज़ करता हूँ। तो आप कोडिंग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जो भी कोडिंग आप यूज़ करते हैं वो सेम कोडिंग आपके इस पैच कोड में होनी चाहिए, और उसके बाद आईओ बॉक्स में होनी चाहिए, और उसके बाद आपके पैच पैनल में होनी चाहिए। तो ये बात का ध्यान रखना है आपको। तो नॉर्मली मैं कोडिंग बी यूज़ करता हूँ ऑफिस में। तो कोडिंग बी में सबसे पहले ऑरेंज वाइट, ऑरेंज, ग्रीन वाइट, ब्लू, ब्लू वाइट, ग्रीन, ब्राउन वाइट, और लास्ट में ब्राउन। इसको थोड़ा इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन। और इन वायर्स को कट करेंगे हम। तो उसके लिए मैं क्रिम्पिंग टूल यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर देखिए ब्लेड है। तो इस तरीके से ये वायर को यहाँ पर रखेंगे। ये देखिए, तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है, ये जो वायर्स हैं ये इक्वल कट होनी चाहिए। तो मैं एक बार इसको दोबारा कट कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये RJ45 कनेक्टर है, और यहाँ पर हम वायर्स को इंसर्ट करेंगे। तो एक्चुअली इसमें स्लॉट्स होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है ये वायर्स प्रॉपर्ली अलाइंड हो, और जो इसकी कोडिंग है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से। इस तरीके से इसको प्रेस कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं, ये 8 वायर्स को मैंने इंसर्ट कर दिया है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये कॉपर वायर्स जो हैं दिखाई देनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये वायर्स जो हैं प्रॉपरली अलाइंड हो गई हैं और स्लॉट्स में इंसर्ट हो गई हैं। और यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये वायर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आप देखिए ये जो केबल का इंसुलेटर है ये भी इस कनेक्टर के अंदर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक लॉक होता है। जब हम वायर को क्रिम करते हैं तो वो लॉक इस इंसुलेटर को दबा देता है। तो अब हम इसको क्रिम करेंगे। तो वायर को हम इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। ये देखिए, तो अब मैं इसको प्रेस करूंगा इस तरीके से। ये देखिए, इसको 2 से 3 बार प्रेस करना है। और इसका मैं आपको दूसरा एंड भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर ये RJ45 कनेक्टर में ब्लेड्स होते हैं। तो जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये ब्लेड्स जो हैं कॉपर वायर से टच हो जाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए क्रिम्प हो गया प्रॉपरली।
According to Mr. Warren Buffett, know nothing investors यानी जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में और यहाँ पर ये ब्लेड्स हैं, ये कॉपर वायर को टच हो गए हैं। तो चलिए इसका दूसरा एंड भी क्रिम कर लेते हैं। तो ये इसका दूसरा एंड है, तो जल्दी से मैं इसका इंसुलेटर कट करता हूँ। इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे हल्का सा और रोटेट करेंगे। ये इंसुलेटर कट हो गया। वायर्स को सेपरेट कर लेंगे। तो मैं इसमें कोडिंग बी यूज़ कर रहा हूँ और इसको स्ट्रेट ओवर केबल, पैरेलल केबल और स्ट्रेट केबल भी बोलते हैं। ये प्लास्टिक है, इसको मैं कट कर लेता हूँ। और इन वायर्स को मैं अनट्विस्ट कर लेता हूँ। तो सेम हम यहाँ वायर्स को स्ट्रेट कर लेंगे। जितना हो सके इसको स्ट्रेट करना है, इससे इजी होता है वायर्स को इंसर्ट करना RJ45 कनेक्टर्स में। तो सेम यहाँ पर मैं कोटिंग बी यूज़ करूँगा। ऑरेंज वाइट, ऑरेंज, ग्रीन वाइट, ब्लू, ब्लू वाइट, ग्रीन, ब्राउन वाइट और लास्ट में ब्राउन। इसको इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन। तो सेम मैं इसको कटर से कट कर लेता हूँ। ये बिल्कुल स्ट्रेट कट होने चाहिए। ये RJ45 कनेक्टर, इसको यहाँ मैम, पर इंसर्ट करेंगे कीजिए, वायर को। पता चल गया। तो ये वायर्स हैं प्रॉपरली इंसर्ट हो गई हैं और यहाँ पर आप देखिए ये यहाँ पर कॉपर वायर दिखाई देनी चाहिए। Okay, so this was related to first experiment, that is crimping. Okay, so whatever crimping procedure is there, that is shown to you. I will share this particular experiment. Ma'am, if the college would be offline, Hmm. then do we have this practical in lab? Let us see what is the status. Okay. No, but earlier students used to do this in lab. Yes. एटलीस्ट एक बैच को बैचेस बना के एक बैच को दिखाया जाता था हाउ टू बी डन, हाउ इज टू बी डन। ओके, मे बी एवरी स्टूडेंट इज नॉट गेटिंग द चांस, बट एक बैच बना के बच्चों को बैचेस में ये दिखा सकते, लाइक दिस वाज शोन। राइट नाउ आई डोंट नो व्हाट इज द स्टेटस एंड आई कैन नॉट वेट। जब तक चालू होगा उसके बाद प्रैक्टिकल्स करेंगे ऐसा मैं सोच नहीं सकती, एंड ऐसा मैं मतलब वी कैन नॉट जस्ट वेट फॉर दैट थिंग। ओके, सो वॉट एवर इज देयर आई हैव टू कंप्लीट। ठीक है,
So this is your first experiment. Is there any doubt? I will be uploading the No, experiment ma'am. number. एक्सपेरिमेंट जो डिटेल्स है वो मैं अपलोड कर दूंगी क्लासरूम में. एक एक्सपेरिमेंट्स का अलग टॉपिक बना के आई विल बी अपलोडिंग एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 4 लाइक दैट. प्रोसीजर सेम रहेगा. यू हैव टू राइट डाउन जो भी आपके पास आपने अभी तक जो किया है. यू विल बी राइटिंग डाउन द एक्सपेरिमेंट्स एंड अपलोडिंग द पीडीएफ. ठीक है. तो सेम वे आपको वो एक्सपेरिमेंट अपलोड करना है. ठीक है. लेट मी टेक द अटेंडेंस. Okay, so I will take the attendance. I think I can see roll number 4 onwards in the meet. So roll number 4, Yes, ma'am. 5, Yes, ma'am. 6, Yes, ma'am. 7, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 10 onwards. 10, Miss 10 present. 11, Present, ma'am. 12, Present, ma'am. 13, Present, ma'am. 14, 15, Present, ma'am. 16, सीधा 23 दिख रहा है. 23, Hello, ma'am. yes. Present. 24, 23, 26, 27, 29, 23, 26, मैम 26 ने चैट बॉक्स में डाला है. okay. Twenty-six, 27, 29, Present, ma'am. 27 present, 29, Present, miss. 29 के बाद कौन है? 30, 31, Present, ma'am. 30. okay, 31, 31 present, ma'am. yes, 31 present. yes. Present, ma'am. 32, 33, Present, ma'am. 34, Yes, ma'am. 35, 36,
36 present, ma'am. 37, Yes, ma'am. 38, Present, ma'am. 39, 40, 43, 43, Yes, ma'am. 44, Present, ma'am. 45, 46, Present, ma'am. 47, Present, ma'am. 47 present, ma'am. 48, 8, 51, 52, Present 52. 53, Present, ma'am. 54, 55, 56, 57, Present, ma'am. 58,